So, guys, welcome back to another episode of the Thought Brewery, where we not only think about thoughts but we brew it. So, thanks a lot for all the love and support that you have provided over the videos that we have shared over the platform. And we are yet again with another episode of the Iran War. As you all said, that there is something more going on, and we should discuss over these topics for your understanding and education purposes. तो सर आफ्टर द past success of the first episode जिसमें हम लोगों ने ईरान के बारे में बोला था, आई थिंक दिस वॉर इज नाउ गोइंग ऑन फॉर लाइक एक महीना हो चुका है. Yes, 31 days. 31 days हो चुके हैं हम लोगों के. एंड स्टार्टिंग में जब आयतुल्ला खमीनी को इन्होंने मार दिया था यूएस इजराइल ने, तो हमको लग रहा था कि ये यूएस विल टेक ओवर देम एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड इन ईरान एंड जस्ट लाइक वेनेजुएला. बट दिस वॉर इज आई थिंक गोइंग ऑन, जितना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इट्स लाइक एज यू सेड कि 31 days हो गए हैं, तो इतना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड कंट्री लाइक यूएस, ही इज गिविंग ओपिनियंस लाइक कि शुरुआत में उसने बोला कि दैट वी हैव वन द वॉर. उससे पहले उसने बोला था कि हम लोगों ने उनकी नेवी उड़ा दी है. एंड देन उसके बाद वो बोलता है कि हम लोगों ने 5 days का थोड़ा पॉज रखा है सो दैट देयर कैन बी नेगोशिएशंस गोज ऑन. उसमें ईरान बोल रहा है कि नहीं, हमको तो हमारे से नेगोशिएशन की कोई बात ही नहीं है, जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा. तो ईरान अपनी पावर दिखा रहा है यूएस के सामने. तो ये सब जो चीजें चल रही हैं, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना लंबा चला जाएगा. तो ये कहाँ जा रहा है ये? To start this, I want to put a question to you, a different type of question. Okay. Is this war? It is. What if this war is not actually between US, Israel, and Iran? What if this war is for your oil trade routes or for your commodity trade routes? Or this war is all about, say, shift in the global powers? This could be related to trade. Okay. What is your opinion on that? See, from a general perspective, जब हम वॉर के बारे में सोचते हैं, it's only about missiles, air strikes and ammunition. उसको उड़ा दो and then मस्त नाबूद कर दो. This is exactly what war is all about. But इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि it's not what exactly this is going on around. Yes. The thing is, Yes, this is where background में शायद कुछ और गेम चल रहा है. Yes, this is where I wanted to lead you. It's a 21st century era. It is no longer the war of the land. It is no longer just about the missiles or the anti-air defense systems or the fighter jets. So countries are not just fighting for the piece of land. Okay. They want to establish their autonomy at a further level. They want to establish their autonomy over the trade corridors, over the energy routes. They just don't want to be like sitting and looking at the trade happening. They want to be a stakeholder of all those trade routes and all those economic corridors. That is one major angle to it. This is where the global influence of the stakeholders comes into picture. Okay. Say for example, let me take you 3-4 years back. Okay. When it was the Russia-Ukraine. Okay. We all know. Just imagine the map of Russia. Russia is like it is the largest country in the world when it comes to area. Yeah. It stretches from this part of Asia. It extends or covers entire Asia. Correct. When you imagine a globe, it touches US as well. Yeah. So when it comes to area, it is largest. And still they are fighting with Ukraine. That was surprising. That was not just a clash of power regime or clash of some other sort of things. They didn't want to achieve any physical gain out of it, except for certain small areas like Luhansk was there, Donetsk was there, Odisha was there, and usse pehle Crimea was there. So these are not just piece of lands; these are the strategic locations through which you could cover or control the entire Black Sea. You could control the entire trade from Europe to Asia. You can be a very clear-cut ally with the Turkey and control the entire Middle Eastern trade or the Asian trade. That is what Russia was trying to do. Okay. It was to control the trade corridor of Black Sea. So trade corridors plays a very critical role in all these things. Okay. It is
a fight, or it is a battle of maps, geographies. It is a battle of making money out of it. It is a business model, not just a clear-cut war of two countries. Okay. So you mentioned कि ये two clear-cut war of two countries नहीं है. There is a different strategy involved. Trade corridors predominantly. And you mentioned कि इसके अंदर जो है trade corridors involved. Now, could you please help me understand this? What exactly is a trade corridor, and what all trade corridors are involved in this? Okay. So two things. First is, what is trade corridor? What is trade corridor? It is that area or part of the entire geography through which trade happens, either through land, okay, or through sea, or through air, whatsoever it is. Second question is, you ask what trade corridors are involved over there. So instead of what, replace that what with who. Whose trade corridors? Okay. That will give you a better insight about what is happening in this particular region. It's more about who's controlling these corridors. Yes. So there are predominantly three trade corridors in that particular geography. One is IMEC, which is your India, Middle East, and Eastern Europe. One is your BRI, which is Belt and Road Initiative of China. Third one is your INSTC, which is your India, Iran, Russia. So when you talk about IMEC, Israel is the major player there. When you talk about BRI, China is the major party over there. When you talk about INSTC, so Iran is the major player over there. So Iran and Israel, they all have their vested interest. They want to make money out of that entire trade. They want to, like, for example, what Iran is currently doing at this moment, it is neither offensive nor defensive. It is, they are acting as a toll keeper. Okay. They are acting as the toll plaza for this entire Strait of Hormuz thing. Okay. Initially, it might be to impact Israel or US or to impact the trade. But now a business model is coming out of it. They are letting ships pass through that. You just need to give them tariff, which would be the entire cost of the commodity would shoot up to 20-25%. Okay, तो इस सिचुएशन से पहले जो सिचुएशन है, इससे पहले जितना भी जो ट्रैफिक होता था जो वहां से निकलता था, it was more of a mutual consensus. Mutual consent, yes, as per international laws. As per international laws, understanding होती है nations के बीच में. Now you are saying कि वो एक sort of वसूली कर रहा है. Exactly. वसूली word is used for more understanding. नहीं, yeah, वसूली word is the best suited word for that. और उससे भी सिंपल भाषा में हमारे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में हफ्ता चलता था ना, it's a protection money. Okay. तो Iran is levying that protection money. I won't hit you. You just pay me this much and go. Okay. And this is where the interesting your relationships come into picture. But this particular thing, it's like a business opportunity for Iran, which Iran is exploiting to its fullest. And because war is a very costly affair, you have to somehow come to a trade-off. You have to balance those investments or those expenses. So to counter that, Iran is using that Strait of Hormuz to make money out of it. हाँ, मतलब वो उसको वॉर के लिए पैसा चाहिए तो वो वहां से एक्सप्लॉइट करा लोगों को. Exactly. और इजराइल को वो पैसा चाहिए अपना, वो ग्रेटर इजराइल which they want to realize. Right. So this is like whose trade corridors, not what trade corridors. So it is the war between the Israel's trade corridors, in which US is a party, and Iran's trade corridors, in which China is also a party somehow. Right. So it looks like कि ये एक मतलब war of missiles नहीं है completely. It's more of a war of map. Map, exactly. कि इतने पोर्शन को मैं ही कंट्रोल करूंगा and then you cannot do anything about it. मैं टैरिफ लूंगा, उसके पैसे से ही वॉर करूंगा. Good. बट इसके अंदर जैसे हम इस पूरी वॉर की हम लोग जैसे पैसे की बात चल रही है कि इसमें पूरा पैसा इन्वॉल्व होता है वॉर में. Without money you cannot fight. And US is a giant in this. Because billions of dollars का बजट रहता है and उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है. ठीक है, लॉकहीड मार्टिन है उसके पास F-35 F-16 है. एंड वो पूरी की पूरी दुनिया में अपने टेक्नोलॉजी को बेचता है, कहके कि if you use my weaponry
he will be considered as the more advanced. Immune. You would be immune to all these attacks. Yes. तो मतलब उसकी पूरी मार्केटिंग इस तरीके से होती थी. Yes. But in this war we can see कि ईरान उसको अच्छे से टक्कर दे पा रहा है. मतलब Yes. उसने ट्रम्प को हिला रखा है. बिल्कुल. ट्रम्प बौखलाया हुआ है. If you see statements on the media, he is actually behaving like a joke. he is behaving like a true joke. that. तो एक ये पूरा नैरेटिव जो होता है कि जिसके पास पैसा है एंड बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, इट्स एक्चुअली एक तरीके का नैरेटिव है. वो एक चलाते हैं कि हम लोग पावरफुल हैं एंड देन बिकॉज अब तक वॉर नहीं हुई थी इस लेवल की तो ये एक्सपोज भी नहीं हुआ था. इट्स मोर ऑफ अ एक्सपोज कि ये वॉर एक्सपोज करती है यूएस की कैपेबिलिटीज की. वो इतना बड़बोला टाइप का इंसान है या फिर नेशन है. बिकॉज ट्रम्प बड़बोला है तो हम बोलेंगे कि नेशन ही ऑब्वियसली he is the face of US. हाँ. तो ये strategy I think matters more than how much of technology that you have. Now ईरान कैसे इसको काउंटर कर रहा है यूएस को. मतलब यूएस एज अ जायंट एंड ईरान इज लाइक जस्ट अनदर कंट्री. ठीक है उसके पास कैपेबिलिटीज होंगी जैसे सो कॉल्ड यूएस. हाउ इज इट कॉम्बैटिंग? So there is economics of war that is coming into picture, and let me give a very thought-provoking idea or a statement that wars are expensive for powerful nations. It is cheaper for smaller countries. Okay. Let me, because we all know F-35s are pretty expensive. Okay. इनका एक drone is costing around $20,000. So there you have millions of dollars, 80 million के आसपास dollars. Here you have thousands of dollars, 20,000. That's the expense of a car. That's the price of a car. So in case if they are shooting their F-35s or they are flying in with their F-35s and here they are countering those F-35s. So imagine the scale, imagine the economics involved over there. 80 million, 20,000. Right. So उसके लिए वो 80 million, now it is about its capability to sustain that expensive structure. Right. इनके लिए it is all about एक और ड्रोन. सिंपल. ये अपने 20 ड्रोन, 200 ड्रोन, 100 ड्रोन एक साथ मार देते हैं. उनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का और इजराइल का आयरन डोम. यूएस की वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, these are pretty expensive. मतलब वो 1:100 के रेशो पे चल रही है. तो it is the cost asymmetry which matters at this moment. वो अपने इतने महंगे को कितने टाइम तक चला पाएगा. उसके लिए तो इट विल बी अ वेरी, सपोज वो जीत गया, वो 3 साल बाद जीत गया, आफ्टर स्पेंडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, देन वुड दैट बी एन एक्चुअल विक्ट्री फॉर यूएस और इजराइल? दैट वोंट बी. विक्ट्री कैसे कह सकते हैं अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बावजूद भी वो बर्बाद ही कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दैट यू आर. प्लस वो जो आपका एक ब्रांडिंग थी कि वी प्रोवाइड यू विद लॉकहीड मार्टिन्स, वी प्रोवाइड यू विद बोइंग, वी प्रोवाइड यू विद Dassault, although Dassault is French. But ये जो एक बड़े बड़े ब्रांड्स थे, इनका सबका सब वो निकल गया. that it's just a marketing gimmick, nothing else. ऊपर से there is one more interesting thing. Iran was heavily dependent on Chinese military equipment, especially when it comes to their anti-air defense systems. अभी इनका क्या करा, वो उड़ के आ गया, इन्हें पता भी नहीं चला. इनके एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स या एयर डिफेंस सिस्टम्स वर नॉट वर्किंग. डिटेक्ट नहीं कर पाया. तो इन्होंने भी तो अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर स्पेंड करे हुए थे. तो इट इज, दिस वॉर इज वेरी क्लियरली एक्सपोजिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ द बिगेस्ट पावर हाउसेज इन दिस वर्ल्ड. बी इट यूएस, बी इट इजराइल, बी इट चाइना, जबकि वो डायरेक्ट पार्टी भी नहीं है. लेकिन इनके पास उन्हीं के आर्म्स है. अब वो भी एक्सपोज हो रहे हैं कि हम सिर्फ वो मार्केटिंग और चूरन, वो बोलते हैं ना चूरन बांट दिया, और ये सब लोग चूरन लेके बैठे हैं. अभी ये मिडल ईस्ट के भी पूरा का पूरा, मिडल ईस्ट मतलब वेस्टर्न एशिया, सॉरी, तो जो भी सऊदी हैं, यूएई हैं, दे आर आल्सो क्वेश्चनिंग कि हम ये क्या लेके बैठे हैं F-16 F-35s. व्हाई डू वी इवन वांट देम? अगर ये कुछ कर ही नहीं पा रहे ईरान का इतने सारे होने के बाद, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू दिस? और दूसरी एक और चीज, just not the economics of all these things, because it's a trade kind of game between the Middle East, US, कि तुम मेरे दोस्त हो क्योंकि मुझे तुमसे ऑयल मिल रहा है, मैं तुम्हें बदले में मिलिट्री सपोर्ट दूंगा, मिलिट्री इक्विपमेंट्स दूंगा. क्या सपोर्ट भाई? सपोर्ट का तो कुछ बच ही नहीं रहा. दे आर हिटिंग यू व्हेनेवर दे वांट.
your biggest friend, so called the giant US is with you and they cannot even stop it. उसने कल कुवैत का पावर प्लांट उड़ा दिया, सबको पता था कि वो रेंज में, उसने बोला था कि वो रेंज में है, उसने 4 दिन पहले बोल दिया था कि मैं पावर प्लांट्स को स्ट्राइक करूंगा. Yes, he did. He did. तुमने क्या कर लिया उसमें? You had your best interceptors, you had your best equipments on the ground, you had the intelligence as well. Intelligence का उसने मीडिया में आके खुद बोला मैं करूंगा. Right. So it is ट्रम्प भी मीडिया में आके कुछ बोल रहा है, बट उसकी बातों की कितनी इंपॉर्टेंस है वो अब सबको पता चल रही है. In terms of importance तो कुछ भी Nobody is valuing his words. When US said कि हम लोग अब 5 दिन का हॉल्ट रखेंगे and will not be bombing Iran, उसके नेक्स्ट डे ही इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी थी. सेम डे वो रुकी थी, बॉम्बिंग चली रही थी, तो उसके एलाइज भी उसकी बात नहीं सुन रहे. तो इजराइल पे आई थिंक नचा ही रहा है, he doesn't care about US. बिल्कुल. The US thing is not any big. Israel is holding the strings in one way or the other. Somewhere. There are different conspiracies that are related to it. उसका जो आपकी एक्सचेंज आती है वो एप्स्टीन के पास भी जाती है. Yes. People believe कि एप्स्टीन was planted by Mossad. I cannot comment on the authenticity of that, but it's a theory that Mossad has planted Epstein over there. Epstein has done its work. He has like all the evidences, or kind of he holds the nerves for most big shot players, be it Bill Gates, be it your Stephen Hawking, be it your Trump, be it your Bill Clinton, or the prince and the royal families, everyone. Every elite class. Now Israel has gathered all that information, and now Israel can make them dance to their tune. Blackmailing, It is pure blackmailing. That is what Mossad is famous for. They used to plant their assets in such a way. Right. So there is a conspiracy that this might be the case, which might be true as well. I personally believe there would be a very strong chances that it could be a thing, because the timing of this war and everything, it leads us to that. Right. तो इस गेम के अंदर मतलब प्लेयर्स कितने हैं? जैसे हम लोग देखते हैं कि यूएस, ईरान एंड इजराइल तो इन्वॉल्व हैं, बट आई थिंक इसके अंदर मिडिल ईस्ट में भी और लोग इन्वॉल्व हैं, एंड आई थिंक ये डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर ये वॉर जारी है. तो डू यू थिंक कि ये जो वॉर है ये मल्टीपल फ्रंट्स पे जारी है? दिस वॉर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. पहली चीज हमें समझनी होगी, 31 days हो चुके. आई नो दैट वुड बी अ क्वेश्चन दैट इट इज रनिंग फॉर 31 days. Definitely 31 days हो गए हैं. It has just started. क्योंकि अभी तक क्या था, अभी इजराइल, यूएस, ईरान, ये लोग थे. अभी स्पेशली थिंक फ्रॉम इजराइल्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूएस तो दूर बैठा है, जियोग्राफिकली वो सेफ है, थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज वो बहुत सेफ है, बट दीज डिफरेंट प्लेयर्स आर एंटरिंग द पार्टी नाउ. स्पेशली फॉर इजराइल it could lead to or at this moment as well, it's a war on 5 fronts. It's a war on 5 fronts. ईरान तो है ही, that's the number one. वो उनका हिट कर रहा है, टेल अवीव पे रोज वो मिसाइल्स मार रहा है at his will. Correct. ठीक है. There Hezbollah is there. Houthis are there. Yes. उसके बाद मिलिशिया फ्रॉम सीरिया एंड इराक इज देयर. उसके बाद में you have Yemen. So everybody is now started kind of pounding Israel like anything. अब हाउदीज का, यमन वालों का अपना वो है, उनके पास भी एक स्ट्रेट है भाई. जैसे अगर हम मैप में देखते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, एक और स्ट्रेट इधर भी है, ये उसके ऊपर वो यमन कंट्रोल करता है. वो यमन या हाउदीज उसे कंट्रोल कर सकते हैं. अगर वो बंद हो गया, योर प्राइसेस विल एस्केलेट टू नेक्स्ट 20-25% फर्दर अप. तो ईरान ने धमकी भी दी है कि वो उसको भी बिल्कुल करेगा. वो उसने स्ट्राइक्स करी हैं हाउदी ग्रुप्स ने उसके ऊपर, और हिजबुल्लाह का अपना चल ही रहा है. वेस्टर्न बैंक में गाजा इशू ऑलरेडी चल ही रहा है. तो ईरान स्ट्रैटेजी इज क्लियर. इट इज नॉट अ डायरेक्ट फाइट 1-on-1, वो तो है ही. वो इजराइल को हर एक फ्रंट पे एंगेज करके रखना चाहता है. क्योंकि ये वॉर जितनी खींचेगी ना, उतना ईरान के लिए बेटर है. क्योंकि हमने वो इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर की जो बात करी है ना, ईरान कैन सस्टेन, क्योंकि वो चीप है उसके लिए वॉर लड़नी. रिलेटिवली वॉर कभी भी चीप नहीं होती, बट ईरान के लिए वो रिलेटिवली इट्स चीपर. तो इट्स लाइक कि ईरान को लड़ना पड़ रहा है
इजराइल से एंड यूएस से कलेक्टिवली। yes, So in order to combat that, वो क्या कर रहा है कि इजराइल को फंसा रहा है या घेर रहा है 5 fronts। yes, बट आई थिंक 5 fronts पे वॉर लड़ना इट्स लाइक टू कॉम्प्लिकेटेड। it is. तो इसमें ठीक है, इजराइल को वो घेर लेगा। व्हाट्स द पोजीशन ऑफ यूएस इन दिस? अब इसमें यूएस की पोजीशन के लिए ना वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके, यूएस हैज प्रेजेंस विद इन वेस्टर्न एशिया फॉर ऑलमोस्ट कपल ऑफ डेकेड्स नाउ. प्रेजेंस यू मीन उसने अपने पूरे वेस्टर्न एशिया में देयर आर मिलिट्री बेसिस, अच्छा, न्यूक्लियर मिलिट्री बेसिस, सो कॉल्ड, जो वो बोलता है, बट आज की तारीख में जो बोल रहा है, आई डू नॉट ट्रस्ट दैट गाय. ओके, But they have already around 40 to 50,000 people, military professionals, working in Western Asia. They are already deployed there. and what are they doing? They are safeguarding those military bases. Okay, and why Those- these nations have allowed them? It was, Just a trade-off. it's not a trade-off. It is how that petrodollar Works. became Okay. critical. वो एक अलग टॉपिक हो सकता है. It's a separate 1 hour different discussion. उसपे- राइज ऑफ पेट्रोडॉलर्स, उसमें फिर आपके अलायंसेज आएंगे, हाउ साउदी क्राउन अच्छा, स्टार्टेड सेइंग कि ठीक है हम पेट्रो डॉलर्स में विल सेल आवर ऑयल एंड बदले में आपको ये करना पड़ेगा, एंड देन पीपल ओपोजिंग दैट, वो पूरा गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, part. दैट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट. let's come हाँ. back. सो अभी मॉडर्न डे या प्रेजेंट सिचुएशन, दे ऑलरेडी हैव 50,000 पीपल ओवर देयर. Okay. बट यूएस को समझ में आ गया ये तो कम पड़ रहे हैं यार, क्योंकि कुछ कंट्रोल जो था कि सेफ गार्ड करेंगे, वो सेफ गार्ड तो कुछ भी नहीं कर रहे. जैसे तुम- अभी उन्होंने कल एक बॉम्ब करा, उनका एयरक्राफ्ट के ऊपर वो गिरा है. ऑल्दो डायरेक्ट डैमेज किसी को नहीं हुआ, बट वो एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया. हाँ. बिना किसी ऑपरेशन के खड़ा खड़ा हैंगर के अंदर उस पर बॉम्ब मार के वो चला गया, एक छोटा सा बॉम्ब, और उसे डैमेज कर गया. तो व्हाट यूएस इज करंटली पोजिशनिंग और इज करंटली थिंकिंग, और they might be in motion as well, is to put 10,000 more boots on the ground, Oh, which is a very, very not so likable situation, even from the US perspective. So as soon as the Trump announced that we are going to put 10,000 troops over there, he faced massive headwind in US itself. okay. There were protests going on against Donald Trump over there. न्यूयॉर्क में हो रहा था, लॉस एंजलिस में हो रहा था, बिकॉज इवन देयर मिलिट्री इज नॉट विलिंग टू फाइट अनदर वॉर इन अ डिफरेंट country. Because I think they have seen already what they went through in Afghanistan and Vietnam. They have seen and they have faced. Seen is a different story. They have faced that defeat in Vietnam. Right. So Vietnam was a game changer. Huh. They have faced that defeat in Afghanistan. It's the graveyard of the empires. They know that these guys, they don't fare well when it comes to being on the ground over there. Definitely. मिलिट्री नहीं आना चाहती, उनके घर वाले नहीं भेजना चाहते, वो फोर्सफुली आ रहे हैं. हाँ, वो they दिखाए वो तो वीडियो कि हम लोग क्यों ये वॉर लड़ रहे हैं, हमारा Yes. क्या मतलब? अब आप फोर्सफुली किसी से क्या करा लोगे? डू यू थिंक मिलिट्रीज या आर्मीज वर्क इन दैट वे? सोल्जर्स वर्क इन दैट वे? You cannot make a soldier fight forcefully. Soldier का अपना एक honor होता है, अपना एक ऑनर होता है, that dignity. आप उसको मजदूर की तरह नहीं लगा सकते कि जाके वहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हो रही है यूएस मिलिट्री के साथ. उनकी डिग्निटी इज बीइंग क्वेश्चन. दे आर फाइटिंग समवन एल्सेस वॉर. दे आर एक्टिंग एज के वो ट्रम्प के लोग हैं. वो ट्रम्प के लोग नहीं है, वो अपने देश के लोग हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड आर्मीज एंड मिलिट्री पावर्स इन द वर्ल्ड. इट इज नॉट बीइंग ट्रीटेड एज सच. आपने उन्हें बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट दे दिए, लेकिन आप ये तो देखो ना उनका पर्पस क्या है. राइट. आप अपने बॉर्डर्स गार्ड करो, आप अपना एक्सपैंड भी करना चाह रहे हो, आप वो भी एक्सपैंड करो. आप दुनिया में आर्म सप्लाई करना चाह रहे हो, आप वो भी एक्सपैंड करो. यू स्टैब्लिश योरसेल्फ एज द किंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच इज फाइन. बट तुम उन्हें लेबर क्लास काम करने के लिए यहाँ पे भेज रहे हो, टू फाइट समवन एल्सेस वॉर. करेक्ट. उनका कोई लेना नहीं देना नहीं. तो दैट विलिंगनेस इज अंडर क्वेश्चन. तो यूएस का इसमें क्या है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द टाइमिंग ऑफ ऑल दिस एस्केलेशन. ओके. यूएस ने तो कहा था 5 दिन का खेल है, 5 भी नहीं, उसने तो 2 दिन का कहा था कि 2 दिन का खेल. यस. हो गया ना 1 महीना. 1 महीना हो गया, अभी पता भी नहीं कितना लंबा चलेगा. ऐसे ही रशिया ने कहा था कि हम यूक्रेन का खत्म कर देंगे. एक हफ्ते में बोला था. उसके 4 साल हो गए ना. अब इमेजिन अ सिचुएशन इफ दिस वॉर लिंगर्स ऑन. ओके. 2 साल के बाद यूएस में इलेक्शन है, 2028 इज इलेक्शंस. और अगर यही माइंडसेट वहां के लोगों का रहा जो अभी है,
ईरान का regime change पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यूएस का पक्का होगा. Republicans are going to fail in a very big way over there. उनकी अगर वहां पे आज इलेक्शंस हो जाते हैं, ये सीधा हार रहे हैं. Because 60 to 65% people are against this war. 30% वो लोग हैं जिनका पता ही नहीं है. 25 to 30% वो ना हाँ में है ना ना में है, वो अपना वर्किंग क्लास लोग अपना. बचे 10-15% वो ट्रम्प के यस सर वाले लोग, वो ठीक है, वी आर विनिंग डिसाइसिवली, दैट इज व्हाट दे हैव सेड. तो ट्रम्प ने एक तो अपने चारों तरफ वही लोग रखे हैं जो ये बोलते हैं यस सर. नोबडी टेल्स हिम कि सर दिस इज समथिंग व्हिच यू आर डूइंग रॉन्ग. आई थिंक कोई साथ में आ ही नहीं रहा है ट्रम्प के. एवरीबॉडी इज पुटिंग देयर स्टेप्स बैक. Yes, बिल्कुल. बट वो क्योंकि उनकी मजबूरी, मान लो, बी इट योर काश पटेल FBI चीफ, बी इट योर तुलसी गबार्ड, दे आर यस मैन. बट आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लेयर इनकी हेल्प करने के लिए आया था. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ बिग प्लेयर पाकिस्तान. तो पाकिस्तान ने सेड कि मैं बीच में मीडिएट करूंगा एंड आई विल गेट द थिंग्स रिजॉल्व. तो ये इतने ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं यूएस वाले दैट दे हैव टू गो फॉर पाकिस्तान सपोर्ट. कि वो पाकिस्तान, सर आप देखिए ना, पाकिस्तान जो कि मतलब एंटी इजराइल है, वो बीच में जाके मीडिएट करेगा ईरान के लिए और यूएस के लिए. इट्स अ जोक ऑफ द मिलेनियम. अ पीस ब्रोकिंग डील which is being brokered by Pakistan or peace. These are like oxymorons. Ask the Hindu population over there. Ask the atrocities on Baluch guys over there. Ask the सौतेला व्यवहार जिसे बोलते हैं ना, जो ये पश्तून के साथ करते हैं, जो हिंदुओं के साथ करते हैं, जो सिंधियों के साथ करते हैं. ऐसा बंदा पीस की बात कर रहा है और एक यूएस जैसे स्टैचर का आदमी उसे एंटरटेन कर रहा है. दिस इज द थिंग. इतना लेवल क्या गिर गया है कि यूएस इस चीज को एंटरटेन भी कर रहा है कि ठीक है, क्योंकि और कोई बोल ही नहीं रहा ना. अब हमसे जैसे किसी ने कहा कि जयशंकर साहब से पूछा गया पाकिस्तान ये कर रहा है, इंडिया ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम ब्रोकर नहीं है. हम तो दलाल नहीं है. हम दलाल नहीं है भाई, वो दलाल है. वो पैसे ले लेगा उसके कि मैंने तुम्हारी जानती कराई, मुझे $5,000 दे दो. तो वो ऐसा कर सकता है, हम वो नहीं कर सकते. तो अभी पाकिस्तान के पास ना जाए तो किसके पास जाए? गया तो यूके के पास भी था कि आई वांट योर एयरक्राफ्ट कैरियर्स ओवर देयर. उन्होंने मना कर दी, फ्रांस ने मना कर दी, जर्मनी ने मना कर दी, जापान ने मना कर दी, सबने तो मना कर दिया. बचा कौन? और वहां पे तो शहबाज शरीफ तो बहुत ही प्यारा आदमी है माशाल्लाह. आपने देखी होंगे उनकी पुरानी वीडियोस वगैरह, वो कितने तो शहबाज शरीफ इज द परफेक्ट पर्सन फ्रॉम ट्रम्प्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो वही बोलेगा. और सबसे हंसी की बात, जो ये बोलते थे ना मगरिब की दुनिया हमारी दुश्मन है और यहूदी से बड़ा कोई काफिर नहीं है, तुम उस यहूदी के कहने पे तुम पीस ब्रोकर पे आ रहे हो यार, पीस डील कराने की कोशिश कर रहे हो. किसे यूएस इजराइल को डिफेंड करोगे तो इजराइल को सपोर्ट करना पड़ जाएगा. आप कैसे करोगे? ईरान को सपोर्ट करोगे तो यूएस के सामने आप अपोज कर दोगे उस चीज को. तो यही तो एक वो, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, एक चीज होती है ना वो जो ऐसे उड़ के जाता है, उड़ता तीर, तो वही है. वो जा रहा था इस्लामाबाद के ऊपर से, भाई साहब उड़े, पकड़ लिया. अब उसका क्या करे? तो दिस कुड बी पाकिस्तान's role, which is a very funny thing. It's a paradox. This is a very बहुत ज्यादा लो लेवल की मतलब ये कंडीशन हो गई है यूएस की कि कोई भी वर्ल्ड में उसके साथ नहीं दे रहा है. इट्स एक्चुअली वी कैन सी अ शिफ्ट इन द वर्ल्ड ऑर्डर कि लोग इनको समझ ही नहीं रहे हैं कोई भी, जहाँ पर वो अपना को इतना बड़ा समझता है, बट पीपल आर नॉट एक्नॉलेजिंग यू. तो आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट अ वॉर ऑफ एम्यूनेशन, जैसे कि आपने बोला था कि इट्स नॉट अ वॉर ऑफ एम्यूनेशन, वॉर जिसके अंदर ट्रेड रूट्स इन्वॉल्व हैं, आपके ऑयल रूट्स इन्वॉल्व हैं, प्रॉक्सी वॉर्स इन्वॉल्व है, साइबर वॉर्स इन्वॉल्व है. तो इट्स नॉट मच ऑफ अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एनीमोर. और उसमें हम लोगों को बहुत कुछ चीजें देखने को मिलती हैं. इट इज नॉट, इट इज डेफिनेटली नॉट अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट. आई एम वरीड एंड माई हार्ट गोज आउट टू ऑल द civilians that is over there. It could be a start of a new Cold War era. Are you saying that
ये कोल्ड वॉर में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है. It has all the potential and all the ingredients to be in a Cold War era. I don't want the world to go into a Cold War era just because कि Trump चाहता है या फिर कोई XYZ इजराइल या ईरान चाहता है. But I think it's आप प्लीज कुछ कमेंट शेयर करके बताइए. That is what we believe. That is what I believe, that it is going to be in a Cold War era. Please give your opinions. आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये शुरू हो रहा है कि नहीं? So that would be my summing up the entire thing. This is a new world order. This is a new warfare, which is beyond the traditional one. यहाँ पे पैसा, trade, war, relationships, perceptions, narratives, सब एक साथ आ रहा है. It's a masterpiece, or it's a best case study to understand the modern warfare. Yeah, actually, that would be my kind of a closing comment or a summarizing thing for this. So I hope peace prevails, and please guys like, share and subscribe our channel for more such content, and we will see you back again in the next episode. And thanks for being with us. Thank you.